नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का करते हैं रुख और उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा चलते हैं सबसे लोकसभा। Chairperson Madam, I would like to also mention and submit that the issue relates to the functions and responsibilities entrusted to the Election Commission of India, which is an autonomous body. In the past, it has been clearly established in this House itself that matters falling under the domain of the Election Commission of India cannot be discussed in this House. On 14 December 1988, when a member tried to raise issue pertaining to the functioning of the Election Commission of India, the then Lok Sabha Speaker, Shri Balram Jakarji, had ruled in the following words, I quote, Mr. to the member, you know that I cannot comment upon the actions and decisions of the Election Commission, which is an autonomous body, nor can they do it. You have to change the Constitution. I cannot allow, I cannot break the rules, unquote. He further stated that under the existing constitutional provisions, the House cannot comment upon the actions of the Election Commission. Chairperson Madam, moreover, Rule 352 Subclause 5 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha clearly says that it is not permitted to reflect upon the conduct of persons in high authority in general discussions. Therefore, Chairperson Madam, the rules are very clear. The House cannot have a discussion on the working of an autonomous body like the Election Commission. I would like to ask the opposition members, do you want to break the rules established by this House? Do you want to throw out the provisions of the Constitution of India? Do you follow the rules of this country? From the day one, you are attempting to break the rules and the conventions established in this august House. Madam, I would like to urge the honorable members of the opposition parties, please allow the function of the House. Let us discuss and debate. Don't disturb the business of this House. We are sent to this House for discussion and debate, for issues related to all important issues of our country must be discussed. Please let the House function. Don't try to break the rules and convention of this august House. Don't try to dismiss all the decisions taken by the past august House. The chairman of then, the speaker of the past, we have to honor them. So once again, I would like to request the members of the opposition party not to disrupt the functioning of the House. We have important bills to take up today on the special appeal of the opposition party. We are not pushing the sports bill. Madam, we are not pressing with the discussion and passing of the sports bill, although it is listed in the business, but we will take it up later. Let the bill related to the Ministry of Shipping and Ports be taken up, which is listed today, and let the House function. I would like to request the honorable members of the opposition party, please don't disrupt the business of the House. माननीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Madam, I am bringing a very important
important bill and for the maritime sector of India. तो लोकसभा की कार्यवाही लगातार जारी है, लेकिन इसी के साथ में विपक्ष की तरफ से हंगामा भी लगातार किया जा रहा है। दरअसल इस बार का जो मानसून सत्र है वो कहीं ना कहीं लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब से ये सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष हंगामा ही कर रहा है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा किया कि उस पर चर्चा होनी है, और जब ये चर्चा हो गई तो उसके बाद अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है और सदन को चलने नहीं दे रहा है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम सभी चर्चा करने के लिए, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, बिलों को पास करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ना कि इस तरीके का हंगामा करने के लिए। तो सीधे तौर पर विपक्ष के इस हंगामे को लेकर नाराजगी जताते हुए किरण रिजिजू नजर आए। इसी के साथ चलिए वापस रुक करते हैं न्यूज पंच का और सबसे पहले एक नजर डालते हैं न्यूज पंच में आज चर्चा होने वाली प्रमुख खबरों पर। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कुछ आंकड़े इस वक्त हाल ही में जारी किए गए हैं मोहन यादव सरकार की तरफ से, जिसमें यह नजर आता है कि लव जिहाद की फैक्ट्री इस वक्त वहां पर चल रही है, क्योंकि पिछले 5 साल पहले धर्मांतरण कानून ये लागू हुआ था और उसके बाद में पिछले 5 साल में कितने मामले दर्ज किए गए, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, जहां ड्रोन वाले यूट्यूबर्स पर चाबुक चलता हुआ नजर आया। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में ये गाइडलाइंस जारी हुई थी ड्रोन को लेकर के कि बिना अनुमति के आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं और ना ही इस तरह की कोई अफवाह आप फैला सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 2 लड़कियां ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाती हुई नजर आई, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई की गई है और ये आखिर कौन है ये दोनों लड़कियां, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां पर YouTube को लेकर के 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए YouTube पर बैन लगा दिया गया और इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं अनबन भी जरूर नजर आ रही है YouTube से, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले सख्त कानून, जिसे राजनीतिक हलकों में अक्सर लव जिहाद कानून कहा जाता है, उसके पहले 5 साल का लेखा जोखा सामने आ चुका है, जो कि काफी चौंकाने वाला है। जनवरी 2020 में लागू हुए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 और उसके बाद बने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन सालों में सजा में ज्यादा बरी होने के मामले सामने आए हैं। दरअसल विधानसभा में मंगलवार को यानी कि बीते कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो आंकड़े रखे वो बेहद ही चौंकाने वाले, क्योंकि कुल जितने मामले दर्ज किए गए हैं उनमें से अधिकतर आरोपी ही बरी हो गए। वजह कई सारी है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि सरकार मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून में लव जिहाद पर अब फांसी की सजा का भी प्रावधान करेगी। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। करेंगे चर्चा इस पूरे आंकड़ों को लेकर के, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं धर्मांतरण विरोधी कानून के 5 वर्ष। तो आपको बता दें कि पिछले 5 वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रदेश में कुल 283 मामले दर्ज किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून के, और जिसमें से 197 मामले अभी भी इस वक्त अदालत में लंबित हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 86 मामले, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 मामलों में सजा दी गई है कोर्ट की तरफ से। 86 में से सिर्फ 7 मामलों में, 50 मामलों में आरोपी जो हैं वो बरी हो चुके हैं, यानी कि उनके ऊपर आरोप साबित ही नहीं हो पाए, और एक मामले में दोनों पक्षों ने आपस में ही समझौता कर लिया कोर्ट में आकर के। तो इस तरीके की ये चीजें सामने आई जिसमें आरोपियों को सजा काफी कम मिल पाई। इसके साथ ही 283 मामलों में 71 पीड़ित जो हैं वो नाबालिग लड़कियां हैं। तो ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो अपने आप में कई सारे सवाल इस वक्त उठा रहे हैं, और इसी के साथ आपको बता दें कि जो मामले सामने आए उनके खारिज होने के पीछे अलग अलग वजह भी सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ी और प्रमुख वजह है सबूतों की कमी होना, जिसकी वजह से मामले जो हैं खारिज हो रहे हैं या आरोपी बरी हो रहे हैं। इसके साथ ही पीड़ितों का गवाही के दौरान पलटना, क्योंकि पहले तो पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन जब कोर्ट में गवाही के लिए वो जाते हैं तो वहां पर अपनी गवाही से ही पलट जाते हैं। इसके साथ ही कई महिलाओं के बयान भी आए हैं और उन्होंने पहले कुछ और बयान देती हैं और फिर कोर्ट में जाकर कहती हैं कि मर्जी से उन्होंने अपनी मर्जी से रिश्ता बनाया। और वहीं दूसरी तरफ समाज के दबाव में परिवार द्वारा एफआईआर भी दर्ज की जाती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ता है, कोर्ट तक पहुंचता है, तो गवाह और साथ ही परिजन दोनों ही अपने बयान बदल लेते हैं, जिसकी वजह से आरोपी जो हैं वो बरी हो जा रहे हैं
और मामले खारिज हो रहे हैं, आरोपियों को सजा नहीं मिल पा रही। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो आंकड़े जारी किए गए उसमें यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश में कहां से कितने मामले सामने आए, जिसमें इंदौर की अगर हम बात करें तो 74 मामले सामने आए, भोपाल से 33 केसेस, धार से 13, उज्जैन से 12, खंडवा से भी 12 मामले इसके सामने आए हैं, छतरपुर से 11 और साथ ही खरगोन से 10 केस सामने आए हैं धर्मांतरण विरोधी कानून से जुड़े हुए। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधा उनका रुख करेंगे। आदित्य, धर्मांतरण विरोधी कानून को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन 5 साल में जो 283 मामले सामने आए उनमें से अधिकतर में सजा ही नहीं हो पाई आरोपियों को और मामले खारिज कर दिए गए सबूतों के अभाव की वजह से, गवाहों की जो गवाह थे उनके बयानों के पलटने की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं कृतिका, और ये एक बड़ा विषय भी इस वक्त है, समाज के अंदर भी बड़ा विषय, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ इस पूरे कानून को लाया गया था, अब इस पर कई जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उससे कई सवाल भी हैं कि 283 मामले दर्ज तो हो जा रहे हैं 5 साल में, लेकिन 70% मामले ऐसे होते हैं जिसमें जो है अभी अदालत में उन पर सुनवाई चल रही है या उन पर काम चल रहा है, लेकिन जो बाकी के मामले बच जा रहे हैं उसमें से भी 50 मामले यानी कि 80 के करीब मामले हैं जिस पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उसमें से 50 मामले ऐसे हैं जिस पर सबूतों के अभाव रहे, गवाह जो है रही लड़कियां वो पलट गई हैं या फिर या समझौता हो गया है, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ साथ एक चीज और निकलकर बात यहां पर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में 70 से ज्यादा युवतियां बच्चियां ऐसी हैं जो 18 साल से कम उम्र की हैं, जिन पर यह पूरा मामला जिनके द्वारा दर्ज किया गया था। अब परिवारों के द्वारा समाज के दबाव में भी कई बार इस तरह के मामले दर्ज करवाए गए हैं। इस पूरे आंकड़ों में यह भी निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन यह बहुत समय से विपक्ष भी इस पर लगातार मुद्दा उठा रहा था, लेकिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से ही यह जवाब जो है वो विधानसभा के पटल पर रखा गया है। कृतिका, इसके साथ ही ये जो जवाब रखा गया है इसमें अगर हम देखें तो अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि इसमें एक और चीज ऐड की जाएगी इस कानून में और धर्मांतरण के खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस पर लेकर क्या कुछ अपडेट है आदित्य आपके पास? देखिए, बिल्कुल एक एसआईटी का भी गठन किया गया 2025 में ही, इसी साल जो है एक एसआईटी का भी गठन किया, एक सेल भी बनाई गई जिसमें इस तरह की जो पीड़िताएं हैं वो कानूनी सलाह जो है, कानूनी चीजें मदद जो है वो ले सकती हैं और फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया। और इसीलिए किया गया कि इस तरह के मामले जो हैं वो मध्य प्रदेश में बंद हो और जो अपराधी हैं इस तरह के अपराध करने वाले जो हैं उनके अंदर एक डर पैदा हो। और मध्य प्रदेश में हाल में भी ऐसा एक मामला चल ही रहा है, बहुत चर्चाओं में है, जिसमें न सिर्फ लव जिहाद बल्कि ड्रग जिहाद भी उसमें शामिल है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह के कानून के बन जाने के बाद 2021 में ये पूरा कानून बना और इस कानून के बन जाने के बाद मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इसको लेकर एक अपराधियों के अंदर एक डर का माहौल जरूर पैदा हुआ है। लेकिन सॉफ्ट टारगेट जो इन ऐसे लोगों के अंदर बन रहा है वो पश्चिम और मालवा निमाड़ का जो इलाका है वो बन रहा है, खासकर इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, यहाँ का जो इलाका है जनजातीय बहुल इलाका है और यहां पर सॉफ्ट टारगेट ये ऐसे लोग करते हैं जहां से मामले और आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़े हुए निकल रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम इस पर लगातार ध्यान दे रहे हैं इस कानून के जरिए ताकि भविष्य में और इस तरह के आंकड़े ना आए और इस तरह के मामले निकल कर ना आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के जरिए अफवाह और डर फैलाने की घटनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया था और इससे जुड़ी गाइडलाइंस जारी की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो लोग ड्रोन का इस्तेमाल कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने के लिए कर रहे हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ड्रोन से जुड़ी जो भी अफवाह फैलाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसके बाद अब एक्शन भी होता नजर आ रहा है और एक्शन हुआ है मेरठ की 2 यूट्यूबर्स पर। ड्रोन से जुड़ी अफवाह फैलाने वाली 2 यूट्यूबर लड़कियों को पुलिस ने अरेस्ट किया और फिर पुलिस ने दोनों से नोटिस पर साइन करा करके उनको थाने से जमानत दे दी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इनमें से जो पहली युवती है, पहली लड़की, वो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, जबकि दूसरी युवती जो है, दूसरी लड़की, वो शॉर्ट फिल्म्स में काम करती है। करेंगे चर्चा इन दोनों लड़कियों के कारनामे को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ड्रोन वाले यूट्यूबर्स पर कार्रवाई।
तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब यूपी पुलिस सीधे तौर पर एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब ये कार्रवाई की गई है। ड्रोन से जुड़ी अफवाह फैलाने वालों पर अब ये कार्रवाई शुरू की गई है। इन दोनों लड़कियों ने ड्रोन से जुड़ी अफवाह फैलाई थी मेरठ में 2 महिला यूट्यूबर्स को इस वक्त हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया उन्हें, और उसके बाद में थाने में नोटिस पर साइन कराने के बाद उनको थाने से जमानत दे दी गई है। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर इस तरीके की दोबारा चीजें हुई तो उनको दोबारा गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर ड्रोन से संबंधित भ्रामक वीडियो शेयर करने पर यह बड़ा एक्शन यूपी पुलिस की तरफ से लिया गया। आपको बता दें कि यूट्यूबर के इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और मेरठ पुलिस की तरफ से इसको लेकर कहा गया कि युवतियों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि यूट्यूबर्स का आखिर कारनामा क्या था वो भी आपको बता दें। सीधे तौर पर एमएससी की छात्रा है रसीद नगर और लाइवा की वो निवासी हैं। आपको बता दें लाइवा ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो जो है वो अपलोड किया था और इंस्टाग्राम अकाउंट पर 80,000 उसके फॉलोअर्स हैं। उसने सीधे तौर पर रात के 3 बजे ड्रोन उड़ाने वाले चोर को पकड़ने का दावा किया था अपने इस वीडियो में। सरस्वती लोक निवासी मीनाक्षी दूसरी आरोपी है इस मामले में और उसने भी ऐसा ही वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था और क्योंकि दोनों के ही जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं और ऐसे में ये अफवाह फैलते देर नहीं लगी, जिसके बाद में पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने इन दोनों ही यूट्यूबर लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही नोटिस पर साइन करा करके उनको जमानत दे दी। लेकिन इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर ये चीज़ दोबारा उनकी तरफ से की गई या इस तरीके की कोई भी अफवाह फैलाई गई तो आगे उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब आगे की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो अब अकाउंट ब्लॉक जो है इन दोनों लड़कियों के वो कराए जाएंगे पुलिस की तरफ से। सीधे तौर पर फेसबुक और यूट्यूब को पुलिस जो है वो मेल भेजेगी और इन दोनों लड़कियों के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनको बंद किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत ये कार्रवाई की गई और साथ ही धारा के तहत 2 साल तक की कैद का भी इसमें प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर डराने पर कैद हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जो आईटी एक्ट है उस आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत भी कार्रवाई है और किसी भी तस्वीर या वीडियो कैप्चर करने पर कहीं ना कहीं 3 साल तक की सजा इसमें कही गई है। 3 साल तक की सजा या फिर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों चीजें भी लग सकती हैं अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। हाँ, इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? अभी हाल ही में 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये गाइडलाइंस जारी की गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाएगा तो कार्रवाई की जाएगी, एनएसए एक्ट भी लग सकता है और अफवाह भी अगर कोई उड़ाता है ड्रोन से जुड़ी हुई तो उस पर भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद इन दोनों यूट्यूबर लड़कियों को समझ में नहीं आया और रात 3 बजे का जो अफवाह फैलाने की उन्होंने कोशिश की है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। विकास जी बिल्कुल, उन्हीं निर्देशों का ये असर है कि ये कार्रवाई की गई है और इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद इनके सोशल मीडिया अकाउंट अब बंद किए जाएंगे, इसकी कार्रवाई की गई है। किस तरीके से अपने यूट्यूब अकाउंट को और ज्यादा प्रचारित करने के लिए सनसनीखेज वीडियो बनाना, भ्रम फैलाना, इस तरीके का ये काम था। ये इस तरीके के काम क्या इनके वीडियो की जब जांच की गई तो पाया गया पड़ताल में कि पूरी तरीके से निराधार था वो और ये इन्होंने सिर्फ भ्रम फैलाने और अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए ये वीडियो का प्रयोग किया था, ड्रोन का प्रयोग किया था और ड्रोन का प्रयोग करने पर जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन है उसके तहत ये लोग दोषी पाए गए, उसी के तहत इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ ये कार्रवाई की अब शुरुआत है पूरे जनपद में। अब तक मेरठ में अगर बात करें खाली तो 26 मुकदमे दर्ज किए गए जिनमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तमाम सारी कार्रवाई अब तेजी के साथ की जा रही है। इससे पहले भी शामली जनपद में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो बिल्कुल अब बहुत सख्त है उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ड्रोन का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि गैंगस्टर की कार्रवाई तो की ही जाएगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो एनएसए की कार्रवाई भी की जा सकती है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था। ऐसा ही ये दोनों लड़कियां सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए जो भी ऐसे करते हैं अपने मौज अपने फायदे के लिए, समाज में भ्रम फैलाने के लिए, जरूर इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और वही अब पुलिस ने करना चालू कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए लगातार आप नजर बनाए रखिएगा और इसी के साथ चलिए अब
तीसरी महत्वपूर्ण खबर का कर लेते हैं सीधा रुख, जहां इंटरनेट पर नजर रखने वाली ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने YouTube समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों से जुड़ी यौन सामग्री को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना यह है कि YouTube से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उसकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई जवाब सामने नहीं आया। इस मामले में YouTube ने आंखें मूंद ली, ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को जारी हुई रिपोर्ट में ई सेफ्टी कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि एप्पल और यूट्यूब पर बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के खिलाफ कई शिकायतें की गई, मगर उन्होंने इस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल आपको यह भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी पिछले हफ्ते ही बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाया था और सबसे पहले इसमें आपको दिखाते हैं कि आखिर एक्शन मोड में ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से नजर आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त ये एक्शन लिया गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने यूट्यूब पर गंभीर आरोप भी लगाया है और खासतौर पर हम देखें तो बाल यौन शोषण कंटेंट को बढ़ावा देने का ये गंभीर आरोप एप्पल और यूट्यूब पर इस वक्त लगाया गया है। इसके साथ ही गूगल और मेटा को भी नोटिस भेजा गया है इस कंपनी की तरफ से। इसके साथ ही सिर्फ इन दो कंपनियों में को नहीं, बल्कि इन कंपनियों की सूची में एप्पल भी शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट इसमें शामिल है, व्हाट्सएप शामिल है, स्नैपचैट इसमें शामिल है। इन सभी कंपनियों को नोटिस भेजा गया है और सीधे तौर पर बाल यौन शोषण पर यूट्यूब ने इस वक्त चुप्पी साधी हुई है, जिसको लेकर ई सेफ्टी कमिश्नर ने भी शिकायत की थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब इन कंपनीज की तरफ से नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं इस वक्त इन दिनों अगर हम देखें तो सोशल मीडिया जो है वो बेलगाम नजर आ रहा है। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई। सीधे तौर पर हम देखें तो सोशल मीडिया इस वक्त बेलगाम होता नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए यूट्यूब को बैन किया, बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ाई। 16 साल से कम उम्र के बच्चे YouTube को नहीं चला सकते, क्योंकि जब YouTube से इसको लेकर जवाब मांगा गया तो YouTube की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। आपको बता दें कि दिसंबर 2025 से ये जो नया कानून है वो लागू होगा। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पहले से ही बैन ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ है, लेकिन अब 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो YouTube का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पर बाल शोषण की सामग्री जो कंटेंट है वो परोसा जाता है और उसको बढ़ावा दिया जाता है। और यही वजह है, इसको लेकर शिकायत भी कई बार दर्ज की गई कंपनी की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई जवाब कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया, जिसके बाद में अब ये बैन की कार्रवाई वहां पर की जा रही है। यानी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में वो YouTube का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पहले से ही बैन लगा हुआ है। तो सीधे तौर पर यह बैन लगाया गया है और अब आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ जवाब इन तमाम कंपनियों की तरफ से सामने आता है। और इसी बीच सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं इस वक्त उत्तराखंड की, जहां पर बीते कल त्रासदी की तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद में अलग अलग तस्वीरें। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बहुत भयंकर, बहुत डरावने। किस तरीके का मंजर था जब ये आपदा आई? अच्छा का पत्थर का था ये तो पूरा। जब ये ऊपर से काफी तेज मलबा आया है, काफी चीख पुकार यहाँ पे आप सामने ही, मतलब किस तरीके से देखा आपने? इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग भी नहीं पाया वहां से। सुमित, क्या नाम है? सुमित रतोड़ी। क्या मंजर था जब आपने देखा? किस तरीके से? उसमें इतना भयंकर दैवीय आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर्षिल पहुंचे थे। हालांकि उन्हें हर्षिल सुबह ही जाना था, हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वेक्षण करना था, लेकिन उस दौरान मौसम खराब होने की वजह से वो वहां पर नहीं जा पाए। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही वो वहां पर पहुंचे और जमीनी तौर पर हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए। किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी ली, लोगों किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें किस तरीके से काम कर रही हैं और राहत बचाव कार्य किस तरीके से चलाया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। कितना नुकसान हुआ है वहां पर, कितने लोगों को नुकसान हुआ है और साथ ही इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी लेते हुए नजर आए। इससे पहले हमने आपको सुनाया कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से जब ये आपदा आई तो प्रत्यक्षदर्शी हैं क्योंकि वो, और उन्होंने क्या कुछ देखा वो हमने आपको सुनाया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब वहां पहुंचे तो घायलों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हर्षिल में। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको लगातार रेस्क्यू करके बचाया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। फूलों की घाटी की अगर हम बात करें तो करीब 150 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित वहां से निकाला गया है। और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो वहां पर 300 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पल पल की अपडेट इसको लेकर ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसी कई सारी तस्वीरें हमने देखी कि जब पानी जो है एकदम सैलाब की तरह आया और पूरे ही गांव को निगल लिया, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। जिसके बाद और उन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी उस तस्वीरों को याद दिला दिया एक बार फिर से। फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो लोग लापता हुए हैं उनको खोजने के, उनको तलाश करने का भी अभियान जारी है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग होटलों में, उनको भी रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अलर्ट भी जारी किया गया है वहां पर इस वक्त। तो ये तमाम चीजें इस वक्त नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कंट्रोल रूम भी मौजूद थे और वहां से एक एक अपडेट अपनी टीम से ले रहे थे। इसके साथ ही आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और ये जो त्रासदी हुई है, जो आपदा आई है, उससे जुड़ी एक एक अपडेट उन्होंने ली और साथ ही केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता और हर संभव मदद देने का भी आश्वासन देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी बात मुख्यमंत्री ने कही। तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है और ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि अब लगातार जो लोग लापता हुए हैं उनको खोजने का अभियान इस वक्त जारी है और जो घायल हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाने की भी कवायद इस वक्त चल रही है और उस दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो अभी तक 150 से ज्यादा लोगों को वहां पर बचाया गया है। फूलों की घाटी में 150 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित वहां से निकाल करके दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया है। बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 300 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके साथ ही गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि सभी लोग जो हैं वो अपने घरों में रहें, ज्यादा बाहर ना निकले क्योंकि अभी भी मौसम बहुत अच्छा वहां का नहीं है। ये तमाम चीजें नजर आई और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।